بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے ایک خبر جو پورے خطے کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی، امریکہ کے اندر رولا پڑا ہوا تھا اور سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ پائلٹ کا کیا بنے گا۔ تو وہ جو پائلٹ امریکہ کا مسنگ تھا، اس معاملے میں امریکن دعوے سامنے آ رہے ہیں اور کچھ اور بین الاقوامی دعوے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ریسکیو آپریشن میں اپنے پائلٹ کو ڈھونڈ لیا، نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ وہ اپنے پائلٹ کو لے کر نکل گئے۔ یہ اگر امریکی دعویٰ سچ ہے، کیونکہ دیکھیں ایران دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام آپریشن تھا اور اس میں کچھ امریکہ کو ملا نہیں اور امریکن اپنے ہی ہیلی کاپٹر تباہ ہوتے رہے، ان کے اپنے طیارے تباہ ہوتے رہے اور یہ ایسی کامیابی کوئی امریکہ کو نہیں ملی۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے، لیکن امریکن نے بڑا لمبا آپریشن کیا ہے۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے تو یہ ایک تاریخی نوعیت کا آپریشن تھا کہ ایران کے بیچ میں ایک اپنے پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے امریکن ایئر فورس نے، اس کے مرینز نے، اس کے کمانڈوز نے بڑا شاندار ایک آپریشن کیا ہے۔ فیوچر میں آپ دیکھیے گا اس کے اوپر ہالی ووڈ کی فلمیں بنے گی۔ وجہ یہ ہے کہ امریکنز اپنی پروجیکشن کرتے ہیں اپنی ملٹری کی اور اس قسم کی آپریشنز کی، جیسا کہ ان کی بہت ساری موویز ہیں۔ بلیک ہاک ڈاؤن ایک ان کا ایک انسیڈنٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے مووی بنائی۔ بہت سارے اور واقعات پہ امریکنز اپنی موویز بناتے رہتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ جیسے ہوا، اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری بنائی گئی۔ تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا امریکن نے، ڈیپ انسائڈ پاکستان، یہ کاکول ملٹری اکیڈمی کے قریب ایبٹ آباد میں۔ تو ایران میں یہ بڑا ایک دلیری کا فیصلہ تھا امریکہ کا کہ اپنے پائلٹ کو وہ ہر حال میں لے کر جائیں گے، اور بڑی بہادری دکھائی امریکن فورسز نے جو وہاں سے وہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، چاہے فورسز دشمن کی ہوں یا اپنی ہوں، آپ ان کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، لیکن جو سپاہی بہادری کے ساتھ لڑے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو بہادری کے ساتھ لڑے اور جو کامیاب آپریشن کرے، اس کو تاریخ ہمیشہ اس کامیابی کو یاد رکھتی ہے۔ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کو تاریخ کی کتابوں میں ان لوگوں نے لکھا اور ان لوگوں نے تعریف کی جو ان کے دشمن تھے۔ تو یہ امریکہ نے بڑا کمال آپریشن کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا۔ میں تھوڑا سا پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ وی ہیو ریسکیوڈ دا سیریسلی وانڈیڈ اینڈ ریئلی بریو F-15 کریو ممبر آفیسر فرام ڈیپ انسائڈ دا ماؤنٹینز آف ایران۔ ہم نے زخمی حالت میں اور بہت ہی بہادر آفیسر جو F-15 کا تھا، اس کو ہم نے ایران کے پہاڑی علاقے میں اندر سے جا کے ریسکیو کر لیا ہے۔ اور جو ایرانی فوج ہے وہ بڑی کوشش کر رہی تھی، سخت کوشش کر رہی تھی اس تک پہنچنے کی، اور بڑی تعداد میں اس تک جانا چاہ رہے تھے اور وہ اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اور یہ بہت ہی از ہائیلی رسپیکٹڈ کرنل، وہ بڑا قابل احترام کرنل ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت شاندار قسم کی ریڈ تھی اور بہت خطرناک یہ ایک مشن تھا، اور سامان اور فوجی یہ سارے اس کے اندر شامل تھے۔ وہ کہہ رہے جی ہم ایک کے بعد دوسری کوشش کر رہے تھے، ہم نے پائلٹ کو ریسکیو کر لیا دن کی روشنی میں۔ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، اور ہم نے 7 گھنٹے گزارے ایران کے اندر اس آپریشن میں۔ یہ بڑا امیزنگ تھا، شو آف بریوری اینڈ ٹیلنٹ بائی آل۔ پھر اس نے کہا جی میں ایک نیوز کانفرنس کروں گا اس حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پیر والے دن اوول آفس میں، اور میں ان آفیسرز کے ساتھ کروں گا۔ گاڈ بلیس آور گریٹ ملٹری وارئرز۔ یہ آپریشن کے بارے میں جو دیگر اطلاعات آ رہی ہیں نا، وہ بھی بڑی حیران کن ہیں۔ جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو اس میں ایک F-15 طیارہ تباہ ہوتا ہے، اس کا ایک پائلٹ مسنگ ہو جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے مشن شروع ہوتا ہے، ہیلی کاپٹرز جاتے ہیں اور 2 ہیلی کاپٹر ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ریسکیو مشن چل رہا تھا، انہوں نے پائلٹ اپنا ڈھونڈ لیا، اس کو ریسکیو کر دیا، لیکن اناؤنس نہیں کر رہا تھا امریکہ، اس ڈر سے کہ اگر وہ اناؤنس کرے گا تو پھر کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پہلے نکالنا ضروری ہے۔ تو چاروں طرف سے انہیں خطرہ بھی تھا، اور وہ ہیلی کاپٹر انہوں نے ایک ایریا کے اندر اتارے، ڈیمیج ہیلی کاپٹر تھے، اور پھر اس کے بعد مزید امداد منگوائی گئی پیچھے سے تاکہ سارے کے سارے کریو کو اٹھا کے وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے۔ اور پھر اپنے وہ دونوں ہیلی کاپٹر بھی امریکہ نے تباہ کر دیے۔ وہ جو ہیلی کاپٹر وہاں پہ اتارتے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ایبٹ آباد میں ان کا ایک ہیلی کاپٹر ڈیمیج ہو گیا تھا، تو اس ہیلی کاپٹر کو امریکہ نے خود ہی تباہ کر دیا تھا تاکہ پاکستان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے۔ ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہوتی ہے نا، تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی کاپی کرے، لہذا وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے H-60 ہیلی کاپٹر جو ہے 2 وہ بھی ڈیمیج کر دیے گئے، پھر بعد میں انہوں نے ان کو خود ہی تباہ کر دیا۔ پھر C-130 جو ہے وہ 2 جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوئے اس کے اندر، پھر ایک جو ہے A-10 تھنڈر بولٹ 2 وہ بھی ڈسٹرائے ہوا اس کے اندر اس آپریشن میں۔ ایک جو ہے MH-6 لٹل برڈ وہ بھی اس کے اندر تباہ ہو گیا اس آپریشن میں۔ ایک یا 2 MQ-9 ریپرز یہ بھی اس میں تباہ ہوئے اس آپریشن کے اندر۔ ایک خوفناک آپریشن تھا، لیکن امریکہ کو کامیابی ملی ہے مبینہ طور پہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا کر۔ یہاں جو آپریشن کے اندر شامل لوگ تھے یا ان کو جو لیڈ کر رہے تھے لوگ کمانڈ روم سے، وہ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے، پیر والے دن ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ پولیٹیکل فائدہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ اب وہ بڑے حملے کا اعلان بھی کرنے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک دھمکی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو وہ دھمکی پڑھ کے سنائی تھی۔
کہ 48 घंटे बाकी रह गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी धमकी दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद मंगल का दिन, यानी आज एतवार है, आप वीडियो देख रहे हैं, परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रही मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुज़दिलो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियां दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियां देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूं कि ए पागल बुज़दिलो, इस मनहूस आबनाए हरमज को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे, बस देखते जाओ। तारीफ अल्लाह के लिए, इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन, यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहाँ सबसे ज़्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहाँ से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में कर लें, वो बादशाह है वहाँ पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहाँ से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहाँ बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहाँ लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा के वहाँ प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहाँ तक गया कैसे, देखें थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक वीडियो है वो दिखाता हूँ। ये मैंने निकाली इस मौके के लिए वीडियो, ये वीडियो है जी। यूएई के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी में, जो कि आज रात है, उसमें शिरकत के लिए आए हैं। ठीक। और वहीं पे वो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट था रावलपिंडी में, जो कि अभी एयरफोर्स के पास है, वहां वो लैंड करेंगे और वहां से सीधा आर्मी हाउस वेडिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे। बेसिक वो इस काम के लिए आए। तो नाज़रीन, ये मोहसिन बेग साहब है, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफ़ी भी है। और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ़ किस्म की फ़ोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फ़ख्र से कह रहे हैं बड़े ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। आसिम मुनीर के ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ, और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे हैं पैसे वापस करो। देखें, यहाँ ममालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती। वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए, जहाँ से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फ़ायदा मिलता, ये वहाँ चले जाते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर रुकावट डाली है, और इनको इस बात का आइडिया भी है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को सूट नहीं करती, हमेशा के लिए मुसीबत बन जाएगी, पाकिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। पहले ही पाकिस्तान का कोई बॉर्डर महफूज नहीं है, ये एक और बॉर्डर को ख़राब करने जा रहे थे। और इस किस्म की बातें मैं नहीं कर रहा, ये बुज़रा कर रहे थे कि जनाब हमें लड़ना पड़ेगा, ईरान बाज रहे, ईरान ये ना करे वो ना करे, वरना हम ये कर देंगे। तो ये तो धमकियां लगा रहे थे ओपनली। वो तो पाकिस्तानी कौम ने सामने आकर इनका मुंह बंद किया, और पाकिस्तानी कौम ने और ईरान ने, खास तौर पे ईरान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को टैकल किया। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तीर से 2 शिकार, यानी ईरान पाकिस्तान की इतनी तारीफ करता है कि अमेरिका और अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हो जाते हैं, और पाकिस्तान इखलाकी दबाव में आ जाता है कि कैसे अब ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है या इसके खिलाफ हम कैसे चल सकते हैं। बहरहाल यूएई ने जनाब अपने खिलाड़ी भी वापस बुला लिए, पाकिस्तानी भी वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात यूएई के अंदर बढ़ेगी। यही चीज़ अब सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान की हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ये कहा
کہ यूएई अगर हमसे पैसे वापस मांग रहा है, आजकल सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी सर्द जंग चल रही है, तो पाकिस्तान फायदा उठाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को कहेगा जनाब आप थोड़े पैसे हमें दे दें, और ये कह भी दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप कुछ पैसे हमें डिपॉजिट कर दें, हम यूएई के पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरब ये करेगा? और अगर ये करेगा तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? ये है बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसी है वो यही रखी हुई है कि मांगते जाओ इधर से फिर उधर से फिर उधर से, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत नहीं चल रही। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए से इस तरह ज़ाया ना किया जाता और पाकिस्तान इलेक्शंस के जरिए चलता, चाहे इमरान खान की हुकूमत रहती चाहे किसी और की आ जाती, तो आज पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होता। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अपने ज़खायर होते, ना कि गैरों का पैसा उसके अंदर रखा हुआ होता। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंच जाता, और आज इतने मजबूर ना होते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने गिरवी ना रखा हुआ होता। जिसकी बात मानते हैं वो कहता है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूएई ने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में अपने पैसे रखे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसके गले पड़ गए जब वो पैसे वापस मांग रहा है। और जब आप गले पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे उनकी तस्दीक करेंगे, यूएई वाले बहुत सियाने हैं, उन्हें पता है कि सरकारी अकाउंट्स कौन से हैं और टाउटों के अकाउंट्स कौन से हैं। उन्हें पता है कि उनकी तौहीन करवाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसीलिए वो अग्रेसिव हो गए हैं आपके खिलाफ। तो चाइना के साथ भी ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की यही खेल खेलती है। वो एक चाइनीज तजज़ियाकार ने कहा भी है, उसने कहा हमें पता है, हमने चाइना में ये चीज़ें कंट्रोल की हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारें किस अंदाज में अपने ट्रोल्स को इस्तेमाल करती हैं। ये एक चाइनीज तजज़ियाकार ने कहा जब पाकिस्तानी टाउट्स ने उसके ऊपर अटैक किया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मैंने आपको बताई कि वो ईस्टर संडे के बाद मंगल को बहुत बड़े हमले करने जा रहा है। ईरान ने कहा जी फिर ये खित्ते में रहने के कोई भी काबिल नहीं होगा, यानी अगर आप इस लेवल पे ले जाएंगे लड़ाई को, अगर ताबकारी फैली तो फिर तो कोई भी नहीं रह सकता, और अगर कोई बड़ी जंग हो गई और बहुत बड़ी तबाही हो गई तो पूरे खित्ते में होगी। अमेरिका और इसराइल के सारे मफादात यहां से खत्म हो जाएंगे। ट्रंप के जो दोनों साहबजादे हैं, दो बेटे हैं ट्रंप के, एरिक और ट्रंप जूनियर, वो दोनों खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे थे, यानी वो दिफाई साजो सामान में कारोबार भी करते हैं। ट्रंप फैमिली के बहुत सारे कारोबार हैं, ये दिफाई कारोबार भी करते हैं, क्रिप्टो कारोबार भी करते हैं, होटलिंग कारोबार भी करते हैं, प्लाजा, पता नहीं कौन कौन से कारोबार हैं दुनिया के जो ये करते हैं। तो ट्रंप के बेटे जो हैं एरिक और ट्रंप जूनियर, ये खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे हैं। ये न्यूज़ फोर्स की रिपोर्ट है अमेरिका से, न्यूज़ फोर्स। वो ये कहते हैं कि ईरानी हमलों के पेश नज़र इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा, यानी इस वक्त जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने बदले में मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया, अब ज़रूरत बढ़ गई है वहाँ पे ड्रोन इंटरसेप्टर्स की, और इनकी प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बाप एक जंग क्रिएट करता है और बेटे उस जंग को लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, और मुल्क आपका बहुत दूर है, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हुसैन बाकरी एक तजियाकार हैं, तो दावा किया था कि अमेरिका तक मार करने वाले उनके पास मिसाइल आ गए हैं शुमाली कोरिया से, और ये 500 की तादाद में है। अभी इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन ये चीज़ें अमेरिका की जो अपनी सलामती है उसको भी खतरे में डाल सकती हैं। अगर कोई मुल्क पूरा तबाह होगा तो फिर वो दूसरे मुल्क को नहीं छोड़ेगा। इसराइल ने नाज़रीन लबनान के अंदर हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सारे कैमरा सिस्टम और सीसीटीवी तबाह कर दिए हैं ताकि किसी किस्म का नुकसान देखा ना जा सके। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है जितनी भी सैटेलाइट कंपनीज हैं कि आप सैटेलाइट इमेजेस जारी ना करें। वो काम भी वहाँ पे हो रहा है और वो बहुत शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है कि नुकसान दिखाए ना जा सके जहाँ पे अमेरिका और इसराइल ना चाहे। बहरहाल लबनान के अंदर बड़े शदीद हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए काम करने वाले, जो अमन के लिए काम कर रहे थे, इंडोनेशिया के फौजी, वो शहीद हो गए इसराइली हमले में। अब इसमें ना तो इंडोनेशिया के सदर ने और ना ही पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो हैं यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार, इन्होंने किसी ने भी इसराइल का नाम नहीं लिया, ना पाकिस्तान ने लिया ना इंडोनेशिया ने लिया। जिनके फौजी शहीद हुए उन्होंने भी नाम नहीं लिया, और इंडोनेशिया में रोला पड़ा हुआ है अवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर, कि हमारे फौजी मार दिए इसराइल ने और आप इसराइल का नाम तक नहीं ले रहे। और यही काम पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने भी किया, उन्होंने भी मजम्मत तो की गोल मोल, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर ने बड़े फकरिया अंदाज में मीडिया के सामने आकर यह अनाउंस किया है कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए, और ये कपड़े पहनाए जाते हैं इसराइली कानून के मुताबिक जिन्हें फांसी दी जा रही होती है या सजाए मौत दी जा रही होती है। तो उन्होंने कहा जी हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए, और फांसी घाट जो है वो तामीर किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल ने कानून पास किया है कि फलस्तीनी कैदियों को फांसी दी जा सकती है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है, सजाए मौत दी जा सकती है। उन्होंने अनाउंस कर दिया, दुनिया में रोला पड़ा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों का भी ऑर्डर दे दिया है और फांसी घाटों की तामीर भी हो रही है। वो कहती है अब रातों को सो नहीं सकेंगे जो हमारे पास है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इस पर क्या किया। पाकिस्तान तो गया था बोर्ड ऑफ पीस में कि इसराइल को जुल्म करने से रोकेगा, लेकिन पाकिस्तान तो जुल्म का हिस्सा बन गया। ये अफसोस की बात है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिलवास्ता हिस्सा बन गया कि बोर्ड ऑफ पीस में आप नेतन्याहू के साथ बैठे हुए हैं। जब से आप बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं तब से पीस आ ही नहीं रहा। अमन बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया और अमन ख्वाब बन के रह गया पूरे खित्ते का।
भाई पाकिस्तान कब निकलेगा बोर्ड ऑफ पीस में से? बाकी ममालिक को भी निकल जाना चाहिए कि जनाब जब से आपने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, पीस नाम की तो कोई चीज हमने देखी नहीं। और अब इसराइल ने जो फलस्तीनियों को फांसी देने का फैसला किया, जो माजी में कभी नहीं हो रहा था, अब वो कह रहे हैं हम फांसियां देंगे, इनको कत्ल करेंगे। इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कोई वादे मौक़िफ़ नहीं लिया। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। इसराइली हमले जो अरब ममालिक पे हो रहे हैं, देखिए ना, अरब ममालिक पे ईरान खाली हमले नहीं करता, इसराइल भी हमले करता है ताकि लड़ाई भड़के। उसके ऊपर पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं देता। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तानी इतना करीब कैसे आ गए इसराइल के। अमेरिका के करीब तो मैं जानता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए इसराइल के इतना करीब आ जाना, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं कभी ऐसा माजी में मुझे लगता नहीं था। अच्छा, ईरान के सोर्सेज और उनका मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि अमली तौर पे यूएई अब इसराइल के साथ मैदान जंग में उतर चुका है और अब कुछ ऐसे हथियार और चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो इसराइल के पास नहीं बल्कि यूएई के पास हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ड्रोन है विंग लॉन्ग 2, उसके बारे में दावा किया गया ईरान से कि वो 2 ड्रोन पकड़े गए हैं, यानी वो मारा और उसका मलबा मिला तो पता चला कि वो विंग लॉन्ग 2 है। तो विंग लॉन्ग 2 चाइना ने बनाया, यूएई के पास भी है, सऊदी अरब के पास भी है। तो अब अगर यूएई बाकायदा जंग में उतर गया है तो ईरान यूएई के साथ क्या करेगा या क्या कर सकता है, ये अब नजर रखनी पड़ेगी। मुझे तो लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे एक पागलपन नजर आ रहा है, एक जंगी जुनून नजर आ रहा है। पता नहीं वो इस लड़ाई को कहां तक ले जाएगा। और जो IAEA के साबिक सरबराह हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा इस पागल शख्स को कोई रोके, वरना ये पूरा खित्ता जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खित्ते के साथ, ये आग फैली। देखिए, एशिया सबसे बड़ा बड़े आजम है, यहां सबसे ज्यादा आबादी है और इसका इंपैक्ट अगर यहां पे कुछ बहुत बड़ा होता है तो जापान तो एक जजीरा था ना, जापान जो मुल्क है उसके चारों तरफ समंदर है, वो दूर है बहुत, वहां पे एटम बम फटा, असरात कुछ और थे। यहां ताबकारी हो जाएगी तो असरात कुछ और होंगे। ये बात दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जात से बाहर शायद अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत प्रेशर में है। नेतन्याहू की भी यही हालत है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी हालत है, तो हमें तो समझ है ना इस बात की। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान की आवाम को मौका मिला तो वो इन्हें नहीं छोड़ेगी। इनको इस बात का आइडिया है, इसीलिए आवाम का सबसे मकबूल लीडर जेल में रख के, निजाम को जकड़ के, अपने आकाओं की मदद करके और उनके नक्शे कदम पे चल के इन्होंने पाकिस्तान में पूरा एक पैरा बिठाया हुआ है। लेकिन कब तक? अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।